بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی توہین اور ان سے کی گئی بے شمار وعدہ خلافیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار قوموں پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان قوموں کو صفائے ہستی سے مٹا کر دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعونوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دردناک عذابات نازل فرمائے، وہ عذابات اپنی ترتیب اور ہولناکی کی وجہ سے سب سے مختلف ہے۔ پیارے دوستو، فرعون پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگاتار 5 دردناک عذابات بھیجے۔ یہ 5 عذابات 1 مہینے کے فاصلے سے آئے اور ہر عذاب 7 دن تک رہا، یعنی جب پہلا عذاب نازل ہوتا تو وہ 7 دن رہتا اور 7ویں دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے وہ عذابات ختم ہو جاتے۔ پھر 1 ماہ کے بعد دوسرا عذابات نازل ہوتا۔ پیارے دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک نے اسدھا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو کھا لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، مگر فرعون اور اس کے حواریوں نے ایمان قبول نہ کیا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے مسلمانوں پر مصر کی زمین کو تنگ کر دیا اور ان مسلمانوں کو فرعون بدبخت نے طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل والوں پر فرعون کا ظلم و ستم دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں ذکر بیان فرمایا: اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت زیادہ سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا انہیں ایسے عذابوں کے اندر گرفتار فرما جو ان کے لیے سزاوار ہوں اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں پر لگاتار 5 قسم کے دردناک عذابات نازل فرمائے۔ فرعونیوں پر نازل ہونے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلا عذاب، پیارے دوستو، فرعونیوں پر آنے والا پہلا عذاب طوفان کا تھا۔ اس طوفان کے اندر ایک خوفناک بادل آیا اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ پھر اس کے بعد انتہائی تیز اور خوفناک بارش ہوئی۔ اس بارش کے نتیجے میں تمام فرعونیوں کے گھر پانی سے بھر گئے، جس کے اندر فرعون کا محل بھی شامل تھا۔ پانی اتنا زیادہ تھا کہ فرعونیوں کے گردنوں تک پہنچ گیا۔ پیارے دوستو، یہ طوفان اتنا دردناک تھا کہ فرعون کے حامی نہ تو کوئی کام کر سکتے اور نہ ہی یہ ہل سکتے تھے۔ ان فرعونیوں کے کھیت اور باغات سب تباہ و برباد ہو گئے۔ اس دردناک عذاب کی صورتحال مسلسل 7 دن تک رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ معجزہ تھا کہ بنی اسرائیل کے مسلمانوں اور فرعونوں کے گھر بالکل ساتھ ہی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی بھی مسلمان کے گھر میں وہ پانی داخل نہ ہوا۔ اس دردناک عذاب کو جب 7 دن ہو گئے تو 7ویں دن فرعون کی ہمت جواب دے گئی۔ 7ویں دن تمام فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ اپنے رب سے کہیں کہ اس عذاب کو ہم سے دور کر دے۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے خدا یعنی اللہ عز و جل پر ضرور ایمان لے آئیں گے اور تمام بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو آزاد کر دیں گے۔ چنانچہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے اس عذاب کو ٹال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اس عذاب کے ٹال جانے کے بعد زمین کے اندر ایسی سرسبزی نمودار ہوئی کہ اس سے پہلے مصر میں کبھی نہ دیکھی گئی۔ تمام کے تمام کھیتیاں شاندار ہوئی، غلوں اور پیداوار میں بے شمار اضافہ ہوا۔ اسی طرح ان نعمتوں کو دیکھ کر فرعون کہنے لگا کہ یہ عذاب تو ہمارے لیے باعث نعمت تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کی فراوانی کو دیکھ کر فرعون پھر سرکش پر اتر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور پھر اسی طرح بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ اس عذاب کو ختم ہوئے ابھی 1 ماہ ہی گزرا تھا کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ٹڈیوں کا خوفناک عذاب مسلط فرمایا۔ اس عذاب کے نتیجے میں ہر طرح ٹڈیاں ہی ٹڈیاں ہو گئیں۔ یہ ٹڈیاں تمام فرعونیوں کے کھیت اور باغات کھا گئیں اور فرعونیوں کے گھروں میں بھی داخل ہو گئی، جبکہ مسلمانوں کے کھیت اور باغات اس عذاب سے محفوظ رہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دردناک عذاب دیکھ کر جب فرعونی تنگ آ گئے تو فرعون نے ایک لشکر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دردناک عذاب سے ہماری جان چھڑا دیں تو ہم اس بار آپ پر ایمان لے آئیں گے
और बनी इसराइल के मुसलमानों को आज़ाद कर देंगे और फिर कभी मुसलमानों पर जुल्म सितम न करेंगे। चुनाचा फिरौन की फरियाद रसी के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने 7वें दिन ये अजाब खत्म फरमाया। जैसे ये अजाब खत्म हुआ तो फिरौन एक बार फिर अपने किए हुए वादे पर फिर गया और अपनी बात से मुकर गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाए। ये लोग एक माह तक आराम और सुकून से रहे। दोबारा से बनी इसराइल के मुसलमानों को तकलीफें देना शुरू कर दी और कहने लगे कि हमारे खेत जो बाकी बचे हैं वही हमारे लिए काफ़ी हैं। अलगर्ज एक माह की मुद्दत के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौनी पर तीसरा दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आने वाला हर अजाब पहले अजाब की निस्बत ज्यादा दर्दनाक और होलनाक होता था। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस बार फिरौनी पर कमल का अजाब भेजा। ये एक छोटा सा कीड़ा था जो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से तैयार फसलों को खा जाता, यहाँ तक कि फिरौने के कपड़े और चमड़ को तक को खा जाता। प्यारे दोस्तों, ये कीड़ा इतना खतरनाक था कि फिरौने के सिरों के बालों और दाढ़ियों तक को भी खा गया। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजा हुआ ये कीड़ा फिरौने के खानों में दाखिल हो जाता, जिसकी वजह से तमाम फिरौनी न कुछ खा सकते और न ही कुछ पी सकते। ये कीड़ा फिरौने के मुंह से दाखिल होता और पखाने के रास्ते से बाहर निकलता। अल्लाह तबारक व तआला के इस अजाब से तंग आकर भूख के मारे फिरौन ने अपने लिए दूसरे मुल्कों से अनाज मंगवाया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से वो अनाज भी इस कीड़े से न बच सका। फिरौन जब भी पखाना करता तो अल्लाह तबारक व तआला के इस दर्दनाक अजाब की वजह से और इस कीड़े की वजह से चीखता और चिल्लाता। आखिरकार तंग आकर फिरौन ने ये चाल चली कि कुछ फिरौनियों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में भेजा कि वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें और हमें इस अजाब से निजात दिलाएं। इस बार ज़रूर हम आप पर ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल वालों पर कभी जुल्म नहीं करेंगे। चुनाचा 7 रोज़ तक ये अजाब रहा और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के सदके, लेकिन फिरौनियों ने हर बार की तरह इस बार भी बदअहदी की और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाए। उल्टा फिरौनी कहने लगे ये अजाब तो हमारे खुदा फिरौन की वजह से खत्म हुआ है। इस तरह जब उस बदअहदी को 1 माह गुजर गया तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौनी पर चौथा दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आने वाला ये चौथा दर्दनाक अजाब मेंढकों का अजाब था। इनकी बस्तियों और घरों के अंदर हर तरह मेंढक ही मेंढक हो गए। अल्लाह तबारक व तआला के इस दर्दनाक अजाब के अंदर मेंढकों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि कोई भी फिरौन जहाँ पर भी बैठता उनकी मजालिस के अंदर हजारों मेंढक घुस जाते और अगर कोई फिरौनी बात करने के लिए मुंह खोलता तो उस फिरौनी के मुंह के अंदर मेंढक दाखिल हो जाते और फिरौनियों के खाने पीने की अशिया में भी मेंढक घुस जाते। यहाँ तक कि फिरौनी के जिस्म पर सैकड़ों मेंढक सवार रहते। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के इस दर्दनाक अजाब के अंदर मेंढकों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि हर तरफ मेंढक ही मेंढक नजर आते। चुनाचा अजाब से तंग आकर फिरौनी एक बार फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करने के लिए कहा और फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यकीन दिलाने लगे कि आप इस अजाब को हमसे दूर कर दें तो इस बार जरूर हम आप पर ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल वालों पर जुल्म न करेंगे और तमाम मुसलमानों को आज़ाद कर देंगे। चुनाचा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के सदके इस अजाब को 7वें दिन खत्म कर दिया। लेकिन इस बार भी ये झूठे फिरौनी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाए। यहाँ तक कि 1 माह भी न गुजरा था कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इन पर 5वां दर्दनाक अजाब मुसल्लत हो गया। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल होने वाला ये अजाब इतना खतरनाक था, एकदम तमाम फिरौनियों के चश्मे भी कुएं और तमाम नहर खून से भर गई। यहाँ तक कि हर तरफ खून ही खून हो गया। तमाम फिरौनियों को पीने के लिए पानी न मिला। इस तरह जब तमाम फिरौनी इस अजाब से तंग आ गए तो तमाम फिरौनी ने फिरौन से फरियाद की तो उस वक्त फिरौन सरकश ने अपने तमाम फिरौनी से कहा ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जादूगरी और नजरबंदी है। फिरौन की ये बात सुनकर तमाम फिरौनी कहने लगे ये कैसी और कहाँ की नजरबंदी और कहाँ की जादूगरी है कि हमारे खाने पीने के तमाम बर्तन खून से भरे पड़े हैं जबकि तमाम मुसलमानों पर इसका कोई असर नहीं। इस पर फिरौन ने हुक्म दिया कि तमाम फिरौनी मुसलमानों के साथ मिलकर एक ही कुएं से एक ही बर्तन में
एक साथ पानी निकाला करें। लेकिन खुदा की शान थी कि मोमिनीन जब बर्तन से पानी निकालते तो निहायत ही साफ और सुथरा पानी निकलता, और फिरौनी जब इसी बर्तन से और इसी कुएं से पानी निकालते तो ताज़ा खालिस खून निकलता। यहाँ तक कि तमाम फिरौनी लोग प्यास के मारे बेकरार हो गए, और प्यास के मारे तमाम फिरौनी मुसलमानों के पास आए और मोमिनीन से कहने लगे, हम दोनों एक साथ ही एक ही बर्तन में पानी पीते हैं। लेकिन इस बार भी अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत अजीब जलवा नजर आया। एक ही बर्तन से एक साथ मुसलमान और फिरौनी मुंह लगाकर पानी पीते, लेकिन मुसलमानी के मुंह में जो जाता वो ताज़ा और खालिस पानी होता, और जो फिरौनियों के मुंह में जाता वो ताज़ा और खालिस खून होता। आखिरकार तंग आकर फिरौन और फिरौनी लोग घास और दरख्तों की जड़ें छाल चबा चबा कर चूसने लगे, मगर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से इनकी रतोबत भी इनके मुंह में जाकर खून बन जाती। अल गर्ज जब फिरौनी इस अजाब से तंग आ गए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और रो रो कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करने लगे, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को यकीन दिलाने लगे कि इस बार ज़रूर हम आप पर ईमान ले आएंगे। आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें और हमें इस अजाब से निजात दिलाएं। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि बनी इसराइल के मुसलमानों पर हरगिज़ जुल्म न करेंगे। चुनाचा इनकी आहोजारी देखकर और इनकी इस दरख्वास्त पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इन पर रहम आया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के सदके ये अजाब इनसे टाल दिया। इस तरह तमाम फिरौनियों और फिरौन पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से 5 दर्दनाक अजाब आए जो एक एक माह की मुद्दत के बाद आए। लेकिन ये बदबख्त और बदकार कौम इन अजाबों को देखने के बावजूद भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाए, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला के कहर व गज़ब का आखिरी अजाब इन पर नाजिल हुआ, और ये तमाम फिरौनी अपने बदबख्त बादशाह फिरौन समेत दरियाए नील के अंदर गर्क हो गए। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन को और तमाम फिरौनियों को दरियाए नील के अंदर गर्क करके रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया, और फिरौन आज भी लोगों के लिए इबरतगाह बना हुआ है। प्यारे दोस्तों, फिरौन वाहिद एक ऐसा बदबख्त बादशाह गुजरा है जिसकी लाश को ना ही पानी ने कबूल किया और ना ही ज़मीन ने कबूल किया, बल्कि इसकी लाश क़यामत तक के लिए इसी तरह दुनिया में जलती और सड़ती रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हमें इन तमाम बुराइयों से निजात अता फरमाए जिन बुराइयों के अंदर मुब्तला होकर पहली कौमें हलाक हुई और अल्लाह तबारक व तआला के दर्दनाक अजाब मुस्तहक करार पाया। उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।